चलो अब क्लास भी रिकॉर्ड होने लगी है तो स्टार्ट करते क्लास। 5 मिनट वेट हो। सब कुछ क्लियर है, ठीक है ठीक है। कल के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर ली सबने? कल क्या हुआ था? भाई कौशन भाई तूने देखी नहीं कल की क्लास, इसमें मेरी गलती नहीं है। रिकॉर्ड करके देख सकता था। लेक्चर अपलोड हो गया था ना, तो आप देख सकते थे। अब आज तो शायद इंग्लिश में भी कराना पड़ेगा। आवाज आ रही है सबको? हाँ भाई, चलो करते हैं क्लास स्टार्ट। जिसको आना था सब आ गए। देखो सबसे पहले रिवाइज करते हैं। क्लास नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का डिवीजन। Let's start division of class first and second. In class first, we have discussed. In class first, we have discussed about cost management accounting. That means what is difference? What is difference between CMA and cost accounting? In first class, we have discussed about CMA and what is the difference between CMA and cost accounting. In first class, we also discussed difference between cost accounting or financial accounting. In first class, we have discussed about CMA. The CMA means cost management accounting. Means we have recorded all cost accounting as a point of as a viewpoint of management. That means जो भी cost accounting की records है, cost accounting records as a viewpoint of management. In first class, we also discussed about difference between CMA and cost accounting. Cost accounting means it's branch of accounts, and cost accounting transactions, cost accounting CA, cost accounting transaction record as viewpoint of management. Now we discuss in first class also was the difference between cost accounting and financial accounting. We have told that in first class accounts have two branches. First is financial account, second is cost accounting. In first class also discussed this financial account is source of money and this cost accounting means work of money. That means in any organization that works only if they have source of money. This source of money work in cost accounting. ये हो गया हमारी क्लास फर्स्ट की रिवीजन। ये हो गई मेरी क्लास फर्स्ट की रिवीजन। अब बात करते हैं क्लास सेकंड की रिवीजन। In class second, we have discussed about basic concepts of basic concepts of
budget, budget costing, and also we have discussed budgets, budgets, practical parts, and we have also discussed three main adjustments of budgets. We have told in last class budget means planning, budget costing means planning for costing, for costing means we have plan and planning for costing called is budget costing. Let's suppose let's suppose ITC Company Limited, ITC Company Limited budget or planning in financial year 2020-21 they have sold they have sold they have sold 10 lakh classmate copies. So they have planned in starting of year and they have costed in budget costing. Now we have discussed budget practicals. So we have discussed there are three practical questions in comes in our exams. First is period wise in P. Second is personal budget in F. Third is master budget. This is a summary of periodic basis and functional basis का बजट का हमारा summary होता है. In three main adjustment we have discussed variable cost, semi-variable cost, and fixed cost. Fixed cost means fixed in every output of budgets. मतलब सर कहने का मतलब ये है कि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगा जब तक आईसीआई के सभी आईसीआई के क्वेश्चन में ना बोला गया. मतलब फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए उसको चेंज नहीं करेंगे. वेरिएबल कॉस्ट चेंज अकॉर्डिंग विद आउटपुट. मतलब अगर आउटपुट में चेंज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा. सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि उसका एक अमाउंट मतलब वन अमाउंट इज फिक्स कॉस्ट एंड अदर अमाउंट इज वेरिएबल कॉस्ट. मतलब एक टाइम तक एक लिमिट एक आउटपुट तक वो फिक्स कॉस्ट रहता है और उसके बाद वो वेरिएबल कॉस्ट बन जाता है. ठीक है भाई. क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड डिवीजन आज हम करेंगे बजट कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन से जो कि प्रैक्टिस मैनुअल है आईसीआई सर्टिफिकेट का. एनी डाउट इन फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास तो पूछ सकते हो. किसी कोई डाउट? जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं उनको कोई डाउट? नयना, जैन, सागर, नो डाउट सर. ठीक है चलिए. आज नाउ वी हैव स्टार्टेड आवर थर्ड क्लास ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग. बजट कॉस्टिंग की ये सेकंड क्लास है. क्लास नंबर ऑफ सेकंड ऑफ बजट कॉस्टिंग एंड ओवरऑल इज थर्ड क्लास ऑफ सीएमए. ठीक है. तो सबसे पहले मैंने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द फोर्थ बजट इज प्रिपेयर्ड बाय periodic basis. That means we have prepared budget in periodic basis. समय के अनुसार समय अनुसार we have prepared our budgets. So in this basis we have prepared fixed budgets
and second is flexible budgets. Fixed budget means in every output, in every output of budgets, all component of all components all components of budgets are fixed. Fixed budget means in every output of budget of all components, yeah, of all adjustments, budgets, all budgets of are sorry, all components and budgets are fixed. In flexible budget, in every output, they have changed their changes according to the output. कहने का मतलब यह है कि फिक्स बजट आउटपुट मतलब जो भी हमारा आउटपुट है वो हमेशा फिक्स रहेगा, उसके जो भी एडजस्टमेंट्स है, जो भी कंपोनेंट्स है, चाहे चाहे कोई भी कॉस्ट हो, फिक्स बजट में वो हमेशा फिक्स रहेगा। फ्लेक्सिबल बजट में क्या है, इन एवरी आउटपुट दे हैव चेंज अकॉर्डिंग टू द आउटपुट, मतलब ये आउटपुट के अनुसार अपने आप को आउटपुट के अनुसार बदल देता है, ये कहता है फ्लेक्सिबल बजट। तो ये तो सिर्फ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, और ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से था। साथ में ये क्वेश्चन हमारे पेपर में 5 से 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस बुक से, ठीक है। तो आप अपने प्रैक्टिस बुक का क्वेश्चन नंबर खोल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ गया फ्लेक्सिबल बजट और फिक्स बजट का मतलब? क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने पीडीएफ शेयर की है, और जो लोग मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनको भी कहूंगा कि क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 खोल लीजिए हमारी प्रैक्टिस बुक का, या प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 5 भी बोल सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 15 है आईसीआई स्टडी मटेरियल में, और जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 5। प्रैक्टिस मैनुअल बोले तो ओल्ड सिलेबस का स्टडी मटेरियल, ठीक है, ओल्ड सिलेबस का स्टडी मटेरियल। तो सबसे कहूंगा कि अपना क्वेश्चन नंबर 5 खोल लीजिए, क्या हो गया, ओल्ड सिलेबस का स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है देखो। हाँ, इस क्वेश्चन में लास्ट में बोला इसने, prepare limited Pentax limited has prepared its expense budget for 20,000 units in practice for the year 2013 as detailed below। मतलब नीचे उसने एडजस्टमेंट दे दी है, उसने 20,000 का बजट बनाया, 20,000 यूनिट्स का बजट बनाया है, और लास्ट में बोला है कि मैं 15,000 और 18,000 15,000 और 18,000 के अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोडक्शन बजट यानी बजट बनाना है। अब देखो फ्लेक्सिबल बजट की पहचान कैसे होगी, क्वेश्चन में ये देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, तो पूरा डिस्कस करेंगे फ्लेक्सिबल बजट, ताकि आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी पार्ट दोनों समझ में आ जाए। तो ये जरूर लिख लेना, ये वाला पॉइंट, ये आपके पॉइंट, ये वाला पॉइंट जरूर लिख लेना अपनी नोटबुक में, ये कह रहा हूं मैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में साफ साफ बोल दे, अगर क्वेश्चन में साफ साफ बोल दे, if in question says कि we have prepared flexible budget and we have prepared for flexible budget, मतलब क्वेश्चन में अगर कह दे कि हमें ये वाला बजट बनाना है तो हमें ये वाला बजट बनाना होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट अगर ये बोल दे, या क्वेश्चन को देख के if we see questions and they change their components as viewpoint of output, मतलब क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में
जो भी एडजस्टमेंट चाहे जो भी कंपोनेंट है, अगर वो आउटपुट अगर वो आउटपुट अगर वो आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंजेस करता है, मतलब आउटपुट के अकॉर्डिंग उसकी एडजस्टमेंट्स चेंज होती है, तो फ्रैक्शनल बजट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट कैसे कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शनल बजट ना दे रखा, तो ये वाला पॉइंट ना हो, ये वाला पॉइंट ना, तो क्या होगा, जैसे क्वेश्चन बोल देगा प्रिपेयर एक्सपेंस बजट। अब एक्सपेंस बजट मैंने बताया था, ये तो हो गया फंक्शनल बजट, हो गया ना, बताया ना फंक्शन का मतलब क्या होता है, वर्क, कार्य। तो एक्सपेंस क्या हो गया, ये वर्क हो गया हमारा, खर्चे हो गए हमारे। लेकिन लेकिन अगर क्वेश्चन में आपने देखा होगा, ये जो एक्सपेंस बजट है वो चेंज हो रहा है आउटपुट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, आउटपुट के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो कोई भी अगर एक्स्ट्रा बजट इन दोनों के अलावा कोई ऐसा बजट आ जाता है जो फंक्शनल हो या मास्टर बजट हो, लेकिन वो चेंज हो रहा है आउटपुट के अकॉर्डिंग, तो हम बनाएंगे फ्लेक्सिबल बजट। अच्छा, सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में मैंने बोला, अगर क्वेश्चन के कंपोनेंट्स, अगर क्वेश्चन का एडजस्टमेंट आउटपुट के अकॉर्डिंग हो जाए, मतलब ये बंदा ना क्या है, फ्लेक्सिबल बजट को मान लो इसे एक पर्सन मान लो, अगर ये पर्सन पैसों के कारण अपनी नीयत बदल दे, इसके कारण पैसों के कारण अपनी नीयत बदल दे, उसको कहा जाता है फ्लेक्सिबल बजट। मतलब चेंज हो जाए आउटपुट के अकॉर्डिंग, मतलब 5,000 पे हमारा खर्चा था 20,000, ठीक है, यानी 1 यूनिट का खर्चा कितना हो गया, 1 यूनिट का खर्चा हो गया हमारा, और ये गया 40 रुपए, नहीं सॉरी 4 रुपए पर यूनिट। उसी तरह से अगर ये आउटपुट बढ़ जाता है 10,000 से, 10,000 यूनिट हो गया, और खर्चा हो जाता है 40,000, तो जब आप इसको दोगे, डिवाइड दोगे, तो क्या आएगा, 4 रुपए पर यूनिट। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा, वैसे वैसे एक्सपेंस भी बढ़ गया, खर्चा भी बढ़ गया, किसके अकॉर्डिंग, आउटपुट के अकॉर्डिंग। बस हो गया, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल बजट हो गए, तीनों पॉइंट हो गए। अगर क्वेश्चन में बोल दे साफ साफ, या क्वेश्चन में और जो कंपोनेंट है वो आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे, या कोई ऐसा फंक्शनल बजट आ जाए या मास्टर बजट आ जाए जो कि आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो उसको भी फ्लेक्सिबल बजट बना देंगे। ठीक है, हाँ, एक बात मैंने और बताई थी आपको, कि बजट करना कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। In last class we have discussed they have no standard, there is no format of any budgets, मतलब बजट का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे, देखिए मैंने बताया था, अगर ये वाला पॉइंट भी लिखना है आपको, अगर बजट बजट का आपको फॉर्मेट बनाना है, तो सबसे पहले क्या था, अगर क्वेश्चन में फॉर्मेट दे रखा है, तो वही फॉर्मेट बनाओ, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन का फॉर्मेट ही चेप दो। या इस वाले बजट में सिर्फ 3 चीजें आपको दिखानी होगी, एक तो दिखानी होगी सॉरी 2 चीजें, एक दिखानी होगी वेरिएबल कॉस्ट, एक दिखानी होगी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गया, तो जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट होगा, तो उसको ऐसे दिखाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में। मतलब ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट। तो 12 बताता हूं, अगर बजट वाले क्वेश्चन में दे हैव नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मतलब कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता कि ऊपर वाले अमाउंट को ऐसे लिखेंगे, नीचे वाले अमाउंट को ऐसे लिखेंगे, या सबसे नीचे वाले अमाउंट को ऐसे लिखेंगे, ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। तो उसको 2 तरह से बनाया जाता है, या तो क्वेश्चन में बोल दे कि भैया तुम्हें ऐसा फॉर्मेट बनाना है, इन क्वेश्चन वी हैव डिस्कस, मतलब बोल दे कि भैया ऐसे 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 करके फॉर्मेट बनाना है, तो तुम्हें भी ऐसे ऐसे करके फॉर्मेट बनाना है। अगर क्वेश्चन बोल दे कि तुम्हें ऐसे फॉर्मेट बनाना है, तुम्हें भी ऐसे ही फॉर्मेट बनाना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में फॉर्मेट ना दे रखा हो, या स्टेटमेंट दे रखी हो, या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कैसे फॉर्मेट बनाना है, तो सिंपल चीज क्या रखना, फिक्स कॉस्ट को अलग लिख देना, वेरिएबल कॉस्ट को अलग लिख देना, और जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो उसे फिक्स कॉस्ट
और फिक्स वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में अलग अलग दिखा देना है। ठीक है, तो दोबारा बताता हूँ, बजट का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट दे रखा है और तुम्हें वो समझ में भी आता है तो वही फॉर्मेट सीख दो, नहीं तो इस वाले बजट में, फ्लेक्सिबल बजट में, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट, उसके दो कंपोनेंट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट करके दिखा दो, बस ये हो गया फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट। ठीक है, और और बाकी किसी भी कंपोनेंट में अगर कुछ समझ में नहीं आया कैसे बजट बनाना है तो सिर्फ ये तीन चीज दिखा दो। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो कम से कम आपको 4 से 5 मार्क्स मिल जाएंगे, और 5 मार्क्स का होगा तो 2 से 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट के पेपर में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, इसलिए या तो क्वेश्चन का फॉर्मेट सेव तो, नहीं तो ये वाली तीन चीजें आप दिखा दो। आइए, और क्या बताना था, दो चीज आती। हाँ, अब देखिए, फिक्स कॉस्ट में दोबारा बताता हूँ, या जिसमें मैंने आपको कल सिखाई थी। फिक्स कॉस्ट का मतलब होगा इन एवरी आउटपुट, इन एवरी आउटपुट, ये वाला पॉइंट भी आपको लिखना है, इन एवरी आउटपुट they have fix। ठीक है, मतलब एवरी आउटपुट यूनिट्स या कैपेसिटी या परसेंटेज, कुछ भी कह लीजिए, यूनिट, कैपेसिटी या परसेंटेज में ये हमेशा फिक्स होती है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोलो तो चेंज करना है, अगर क्वेश्चन में बोल दे कि भैया अगले साल से फिक्स कॉस्ट ही बढ़ जाएगी, तभी आपको बढ़ानी है, अदरवाइज आपको फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ानी है। ठीक है, कितने लोग हैं? ठीक है, इन वेरिएबल कॉस्ट, इन वेरिएबल कॉस्ट ये जो चेंज होगा ना, अकॉर्डिंग, चेंज अकॉर्डिंग आउटपुट, मतलब आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कैसे? मान लीजिए 5,000 यूनिट को बनाने के लिए हमें लगते हैं 20,000 रुपए। ठीक है, कितने लगते हैं? 20,000 रुपए। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, तो ये मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर कुछ किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा वाला आ जाए तो कैसे करना, देखिए 5,000 बनाने के लिए 20,000 चाहिए, तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना चाहिए, तो कैसे करेंगे, देखिए आपने 7th क्लास या 8th क्लास में सीखा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। यूनिट के नीचे यूनिट लिख दो और अमाउंट के नीचे यहाँ पे एक्स अमाउंट हो गया, ये नीचे लिख दो। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो हमें एक्स चाहिए, तो एक्स मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर ये इधर, तो ये एक्स मल्टीप्लाई 5,000 यूनिट, फिर इक्वल का साइन, फिर एक यूनिट मल्टीप्लाई बाय 20,000। ठीक है, अब फिर आप इसको कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, 30 से 30 गया, 5 से 4 गया, ये तो आप सबको आता ही होगा। एक्स हो जाएगा 4 रुपए पर यूनिट, मतलब हाँ, एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए आपको लगता है 4 रुपए पर यूनिट, तो 1 यूनिट को लगता है आपको 4 रुपए पर यूनिट। ठीक है, ये हो गया आपकी कॉस्ट। तो अब देखिए, अगर आपको 10,000 यूनिट का कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, इस 10,000 यूनिट को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कॉस्ट हो जाएगा 40,000 रुपए। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट को, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। फिर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बहुत आसान होते हैं, ये कोई भी कर लेता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट।
सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे हो देखिए। पहले एक एग्जांपल देता हूँ, ये वाला एग्जांपल जरूर लिखिएगा नोटबुक में। यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए बुक का देता हूँ तब आएगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है इसमें? छोड़ी मैं को देता हूँ देखिए। मान लीजिए 5000 5,000 रुपये लगते हैं, 5 रुपये बनते हैं हमारे 20,000 यूनिट, ठीक है। और 7,000 यूनिट बनाने में लगता है हमें, लगा लो लेट्स सपोज 30,000 यूनिट लगते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है 40,000 का, ठीक है, कि 40,000 में कितना लगेगा, कितना खर्चा आएगा। तो देखिए हमें ये एक चीज पता चल गई भैया, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट और फिक्स कॉस्ट का अमाउंट मिला हुआ है। तो कैसे करेंगे ये निकालने के लिए आपको निकालना होगा फॉर्मूला। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, इसके दो पार्ट्स है। पहला आपको निकालना होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिर उसके बाद आपको निकालना होता है फिक्स कॉस्ट का अमाउंट, ठीक है। ठीक है आगे देखिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी। इन दोनों का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस इन आउटपुट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट, मतलब इन दोनों का डिफरेंस नीचे आएगा और सॉरी रुपीज ऊपर आएगा, मतलब इन दोनों डिफरेंस ऊपर आएगा और आउटपुट का डिफरेंस नीचे आएगा, ठीक है। क्यों? क्यों हमें निकालना है पर यूनिट कॉस्ट, इसलिए यूनिट नीचे आएगी और पर यानी पैसा ऊपर आएगा, ठीक है। ये निकालने के बाद हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। जो भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगी, जो भी वेरिएबल कॉस्ट आएगी, लेट्स सपोज आ गई 10 रुपए पर यूनिट, ठीक है। आगे अब हमें फिक्स कॉस्ट निकालना है, तो आउटपुट कितना था 30,000। तो 30,000 को 30 में से एक एक मान लो, एक आ गया 1 रुपए पर यूनिट। 30,000 को और 30,000 मत मानो, इसे 300 लिखो। हाँ 300, 300 मल्टीप्लाई बाई 1 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट और ये हो गया भाई टोटल कॉस्ट 7,000। जो भी आएगा इसको इससे आप माइनस कर दोगे तो आपका फिक्स कॉस्ट का अमाउंट आ जाएगा। तो दोबारा बता देता हूँ, एक सेकंड। ये थी हमारी टोटल कॉस्ट 7,000। इसमें से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी फिक्स कॉस्ट। वो आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए टोटल कॉस्ट किससे बनी होती है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो आपने वेरिएबल कॉस्ट यहां से निकाल ली, ये वेरिएबल कॉस्ट निकल गई, टोटल कॉस्ट आपको याद दे रखी है, तो फिक्स कॉस्ट आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। आ गया सबको समझ? सागर जैन जो जो ऑनलाइन है आगे बढ़े। ठीक है चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए मेरे साथ, और मेरे साथ ही आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, लास्ट में लिखा है उसने एक्सपेंस बजट बनाना है आपको 15,000 यूनिट। वीडियो प्रॉब्लम, नेट तो सही है। दिख रहा है जो ऑनलाइन है बच्चे उनको दिख रहा है। नैना आपको आवाज आ रही है?
चलो ठीक है, करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए आप। क्वेश्चन 5 में बोला एक्सपेंस बनाना है आपको। प्रोडक्शन 15,000 यूनिट एंड 18 यूनिट। अब देखिए, अब क्वेश्चन में कैसे, देखिए एक्सपेंस बजट आ गया तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा ये तो फंक्शनल बजट है, ठीक है। अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें बोल दिया पर यूनिट। क्या बोल दिया है कि भैया 20,000 यूनिट का बजट दे रखा है हमें, एक्सपेंस बजट। वहां पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, और जो भी एक्सपेंस है वो आपको नीचे दे रखी है। कुछ फिक्स है, कुछ वेरिएबल है, वो भी आपको क्वेश्चन में बता रखा है, ठीक है। तो अब आपको बनाना है 15,000 के बेसिस पे और 18,000 के बेसिस पे और 20,000 के बेसिस पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो बनाते हैं। और ये मैं बता दूं, ये आया था आपके, सॉरी, ये आया था आपके आईसीआई के मई 2012 का आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी 5 मार्च, सॉरी 8 मार्च का ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है, सागर नैनन, तो ये आपके 8 मार्च का क्वेश्चन था, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए, इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था नहीं, इसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेट दे रखा है, जो भी खर्च है वैसे दिखा दो। क्वेश्चन में जो चीज दे रखी है वैसे दिखा दो। मैं बताया था ना कि बजट के दो तरह से फॉर्मेट बनते हैं, या तो क्वेश्चन में बोले, नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दिखा दो। तो क्वेश्चन में देखो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सब दिखाया है। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट को चेक देंगे। एक्चुअल बजट है, ठीक है, 20,000 यूनिट पे गिवन था। तो जब भी फ्रैक्शनल बजट का क्वेश्चन आए तो जो भी गिवन यूनिट होगी ना, जो भी गिवन यूनिट होगी, एक बार याद रखना, जो भी गिवन यूनिट होगी उसका जरूर एक कॉलम बना दो, ताकि आपको दिखने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी रहे। उसके बाद जो क्वेश्चन मैं बोला था बनाने के लिए 15,000 ये बोला हुआ था, और 18,000 ये क्या हमारा आउटपुट, ये क्या हमारा आउटपुट। अब दिखाएंगे नीचे हम, ये हो गया कॉलम ए। अब बी में दिखाएंगे हम अपने एक्सपेंसेस। क्या दिखाएंगे, एक्सपेंसेस दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपेंस क्या था हमारा, डायरेक्ट मटेरियल। क्या था, डायरेक्ट मटेरियल। सबसे ऊपर क्या था, डायरेक्ट मटेरियल। और डायरेक्ट मटेरियल में लिखा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल में लिखा हुआ है 50 रुपए पर यूनिट। मतलब फिक्स कॉस्ट तो होगा नहीं, अगर फिक्स कॉस्ट तो लिखा होता है ये भैया फिक्स है। सेमी वेरिएबल भी नहीं होगा, क्यों, अगर सेमी वेरिएबल तो कुछ ऐसा लिखा होता इसमें सेमी वेरिएबल का और फिक्स का है। पर यूनिट है, मतलब ये बंदा ना यूनिट्स के अकॉर्डिंग, ये यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, यूनिट्स के अकॉर्डिंग। तो मतलब डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा हमारा, वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा हमारा, वेरिएबल कॉस्ट। और क्या, 50 रुपए पर यूनिट। क्या, 50 रुपए पर यूनिट। तो 20,000 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 लाख। क्या आएगा, 10 लाख। उसी तरह से 50 रुपए पर यूनिट है, तो 15,000 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, ये था हमारा 50 रुपए पर यूनिट। तो 15,000 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7,50,000 रुपए। और उसी तरह से 18,000 दे रखा है, तो 18,000 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 9 लाख। आ गया समझ में ये वाला पॉइंट। उसके बाद देखेंगे डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर में साफ साफ बोल रखा है, तो ये 20 रुपए पर यूनिट है। ना फिक्स के बारे में कुछ बताया, ना सेमी वेरिएबल के बारे में बताया, ये बता दे पर यूनिट, यानी यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट। कितना रुपए यूनिट है ये यूनिट है हमारा 20 रुपए पर यूनिट, 20 रुपए पर यूनिट। तो 20 को 20,000 यूनिट से, ये यूनिट से, ये यूनिट से, और ये यूनिट से, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4 लाख। ये आ जाएगा आपका 15 30 3 लाख। ये आ जाएगा 3.60 lakhs। ठीक है, आ गया। और बाकी बचा है वेरिएबल ओवरहेड से, हाँ ठीक है।
बाकी का पार्ट आप अभी क्वेश्चन अभी कीजिए, और ना समझ में आए तो अभी पूछिए मेरे से। उसके नीचे, सॉरी हाँ, जिसके जो इसके नीचे लिखे वेरिएबल ओवर, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का कॉलम आप इसमें दिखाइए और मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ आपने सही किया है या गलत। तो जो लोग भी लाइव है वो जरूर दिखाए बताए मुझे। ठीक है सागर, सागर और बाकी के जो कॉलम्स है, वेरिएबल का, डायरेक्ट एक्सपेंस का, सेलिंग एक्सपेंस का, फैक्ट्री का, एडमिनिस्ट्रेटिव का और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का, आप मुझे कॉलम बना के दिखाइए जल्दी। 5 मिनट का टाइम है आपके पास बस। मैंने जिसको सागर नयन जो भी दोनों ऑनलाइन है, क्वेश्चंस हो गए आपके? जल्दी करो, 5 मिनट के टाइम में। नयना, सागर, जयंत और जो 4 5 लोग ऑनलाइन है, उनके क्वेश्चंस हो गए या कर रहे हैं ना वो लोग? क्वेश्चंस हो गए आपके दोनों, जो भी लोग ऑनलाइन है?
हो गया? क्वेश्चन हो गया आप लोगों के? डन 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 डन। नैना का भी देखते हैं। हो गया क्वेश्चन सागर आपका? कोई डाउट इसमें बचे हुए क्वेश्चन में? चलिए ठीक है, मैं करा देता हूँ। देखिए देखिए देखिए, वेरिएबल ओवरहेड क्या है हमारा? वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये इसकी इसी के जैसा हो जाएगा। इसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस की बात की जाए तो वो भी वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों? आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अब नीचे लिखा है सेलिंग एक्सपेंस। क्या लिखा है? इस वाले पॉइंट पे ध्यान देते हैं, फिर आपका हो जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस में क्या बोला है कि सेलिंग बोला कि 20% फिक्स है, मतलब 15 रुपए का 20% 3 रुपए फिक्स है, बाकी का 12 कितना हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। क्यों बताया था ना, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है? 15 रुपए पर यूनिट। उसने बोल दिया है उसने बोल दिया है कि वो 20% फिक्स है, मतलब 15 का 20% फिक्स है, मतलब 3 रुपए तो वो फिक्स है, तो बाकी का बैलेंस अमाउंट 12 रुपए क्या हो जाएगा? आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है 3 रुपए, तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू थी। क्या थी? पीवी, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू पे जो फिक्स कॉस्ट रहती है, ये याद रखना, प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो क्वेश्चन में गिवन आउटपुट या कैपेसिटी परसेंटेज गिवन दे रही होती है, और फिक्स कॉस्ट का जो भी अमाउंट होता है, तो दिए हुए क्वेश्चन में जो आउटपुट करते हैं हम, उसमें क्या होता है? फिक्स होता है। मतलब 20,000 को 3 से लगेंगे तो 60,000 आएगा। तो ये 60,000 इसमें भी फिक्स रहेगा और ये इसमें भी फिक्स रहेगा। ठीक है, बाकी का वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 20,000 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 15,000 को इससे कर दो, और 18,000 को इससे कर दो। और फिक्स को इससे कर दिया, ये तो प्रेजेंट वैल्यू थी, तो इसमें भी वही रहेगी और इसमें भी है। क्यों? फिक्स कॉस्ट तो बोला नहीं चेंज करने को, तो प्रेजेंट में जो फिक्स कॉस्ट रहेगी वो आने वाले आउटपुट में यानी आने वाले सालों में क्या आएगी? फिक्स रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब दो क्वेश्चन अब मैं आपको देता हूं क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। सागर नैना दोनों को समझ में आ गया? तो डाउट तो पूछ लो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका आईसीएस मई 2012 का 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। मैंने जिसको नहीं चाहा, वो ऐसे दिल के- ठीक है, अब ठीक है, अब अपना होमवर्क लिख लो, फिर बचे हुए इसके फ्रैक्चर बजट के क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, कहाँ गया चैप्टर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क लिख लो आप सभी लोग, प्लीज करके लाना। और कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा 9 और 11। ये तो जो मैंने पीडीएफ फाइल शेयर की थी उससे करना है, और जो स्टडी मटेरियल का आईसीआई स्टडी मटेरियल का करंट वाला, उसमें जो भी फ्रैक्शनल बजट के क्वेश्चंस होंगे, कौन से?
फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चंस होंगे वो आपको करने होंगे, मतलब ये 3 क्वेश्चंस और ये वाले क्वेश्चंस आपको करके लाने होंगे। इसमें से 2 क्वेश्चंस, इसमें से मैं बता देता हूँ, 9 नहीं, 9 नहीं, एक तो ये वाला क्वेश्चन आपके पुराने पेपर में आ चुका है, पास ईयर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके पास ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आप स्टडी मटेरियल करेंगे तो 2 या आई थिंक 4 क्वेश्चन है इसके, 4 क्वेश्चन ये और 3 क्वेश्चन ये, 7 क्वेश्चन ये करके लाएंगे। तो पहले हम इसका रिवीजन करेंगे, फिर सातों क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम? यस या नो में लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ू। सागर, नैन, नैन तारा, आगे बढ़ू या कुछ तो बोल दो यार, मैसेज में लिख दो यस या नो, कुछ भी। कुछ साथ, हाँ तो अभी तो बोला एक बार करके देखना, उसे समझ के देखना हो पा रहा है कि नहीं। एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है। जस्ट 1 सेकंड। अरे आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 7 ना। हाँ, एक बार ध्यान से पढ़ना, आपको समझ में आ जाए। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में ना जो आपको प्रेजेंट वैल्यू होगी, मतलब जो भी प्रेजेंट सिचुएशन होगी, उसमें जो भी फिक्स कॉस्ट आएगा ना, उसमें जो भी फिक्स कॉस्ट आएगा वो आने वाले आउटपुट पे, चाहे कोई सा भी परसेंटेज हो, चाहे कोई सा भी आउटपुट हो, अगर चेंज करने को नहीं बोलेगा तो वही फिक्स रहेगा। मतलब प्रेजेंट पे बोला है कि 2 लाख का खर्चा है फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ पे भी 2 लाख होगा, यहाँ पे भी 2 लाख होगा। बस कौन सा चेंज होता है? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है? फिक्स कॉस्ट निकाल लो, वेरिएबल कॉस्ट निकाल दिया तो फिक्स तो यही पूरा फिक्स रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगा आउटपुट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, कितनी थी प्रेजेंट वैल्यू? एक सेकंड बस। हाँ, इसमें दे रखी है मेरी 8,000। इसे मिटा देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। जिसको मैंने बेचा, देखिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, डिस्कस कर लेता हूँ। डिस्कस था 8,000 यूनिट, मतलब ये हमारी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है 8,000 यानी कि इसमें कोई परसेंटेज की कैपेसिटी नहीं है, तो इसे माना ये 100% है। मतलब कोई भी फैक्ट्री अगर 100% में वर्क करती है, अगर 100% में वर्क करती है तो वह 8,000 यूनिट का आउटपुट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? प्रेजेंट वैल्यू। आने वाले सालों में, आने वाले सालों में हो सकता है आउटपुट बढ़ेगा या कम होगा, तो उसमें बोला है 50%। तो 8,000 का 50% कितना हो जाएगा? 4,000। 75 पे कितना होगा? 8,000 का 75 कितना होगा? 8,000 का 75 कैलकुलेटर, 6,000 कितना हो जाएगा? ये 4,000 यूनिट है और ये 6,000 यूनिट हमारा हो जाएगा। तो बस इस पे जो भी फिक्स कॉस्ट का अमाउंट होगा वो इन दोनों पे भी फिक्स रहेगा, जो वेरिएबल होगा वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगा उसका फिक्स कॉस्ट निकालो, इस पे इस वाले अमाउंट को वेरिएबल कॉस्ट निकालो, फिक्स कॉस्ट को फिक्स ही रहने दो, वेरिएबल को चेंज कर दो, ठीक है। हो गया, ठीक है। कोई डाउट? और क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 11 आपको कल करके लाना है, और आईसीएस सर्टिफिकेट का जो क्वेश्चन था आपका एक्सेल बजट का, जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको करके लाना है, ठीक है। मैंने ठीक है, तो आपका आज एक्सेल बजट खत्म हो गया है।
कल बच्चे का ऐसे स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन आपके फ्लेक्सिबल बजट के वो, और क्वेश्चन नंबर 7, 9, 11 ये क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगर टाइम बचा तो ठीक है, नहीं तो इसके बचे हुए बजट्स मतलब फंक्शनल बजट्स और मास्टर बजट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले मास्टर बजट करेंगे, ये आसान है, उसके बाद फंक्शनल बजट के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपका ऐसे का शेड्यूल अच्छे से हो गया और प्रैक्टिस में अच्छे से हो गया तो आपके आरटीपी के क्वेश्चंस हो, चाहे एमटीपी के हो, चाहे पास सेट के क्वेश्चंस हो, मोर देन 90% क्वेश्चन आपके इन दोनों के क्वेश्चन करने से हो जाएंगे। कुछ एक आध क्वेश्चन अगर नया रहेगा तो अलग से क्लास में वो डिस्कस करेंगे। जो आरटीपी, एमटीपी या पीसीएम में इन जैसा क्वेश्चन नहीं होगा तो अलग से हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में, ठीक है। तो क्लास यहीं पे ओवर होती है। आज जो मैंने बताया उसका रिवीजन करवा देता हूँ। आज हमने एक क्वेश्चन किया फ्लेक्सिबल बजट का, क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड मिनट से, हाँ। अब लास्ट में रिवीजन करते फिर चलते हैं। देखिए आज जो हमने डिस्कस किया हुआ फ्लेक्सिबल बजट, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बजट का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होगा। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, मतलब कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट, अगर क्वेश्चन में जो फॉर्मेट है, क्वेश्चन में जो फॉर्मेट है वही फॉलो करो। अदरवाइज इन फ्लेक्सिबल बजट में वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को शो करके दिखा दो, आपका फ्लेक्सिबल बजट सही हो जाएगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट में क्या बताया था, एक और पॉइंट, जो आपको गिवन डाटा होता है ना, जो गिवन डाटा होता है वह होता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में जो भी फिक्स कॉस्ट होगी वो आने वाले जो भी डाटा दे रखा होगा, जिस डाटा पे हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं उस पे क्या होगा, हमें फिक्स ही रहेगा वो। मतलब अगर यहाँ पे बोल दिया कि फिक्स कॉस्ट 20,000 है तो यहाँ पे भी 20,000 होगा और यहाँ पे भी 20,000 होगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, आउटपुट के अकॉर्डिंग, मतलब पर यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे उसकी और इस वाले आउटपुट से इस वाले आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, पहले फिक्स कॉस्ट निकालो फिर वेरिएबल कॉस्ट निकालो, तो फिक्स रहेगा इस वाले अमाउंट पे, अब वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगा आउटपुट के अकॉर्डिंग। मतलब ये जो गिवन डाटा होता है ना, या प्रेजेंट वैल्यू होता है, वो देखना होता है उस पे फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ठीक है। अगर गिवन आउटपुट का परसेंटेज, अगर गिवन आउटपुट का परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी गिवन नहीं होता तो उसे 100 मान लिया जाता है। अगर क्वेश्चन में देगा ठीक है, अगर ना देगा तो क्या मान लेंगे इसको 100%। और आउटपुट तो दे ही लिखा होता है 8,000, तो मतलब 8,000 है हमारे यहाँ पे 100% फिक्स। और अगर 75% बोल दे तो 8,000 का 75% हो जाता है हमारा 6,000, और 50% बोल दे तो हो जाता है 4,000। अगर क्वेश्चन में बोलता है ये 75% है, अगर क्वेश्चन में बोलता है ये 75% है 8,000, तो इसका 100% कैसे निकालेंगे, 8,000 को 8,000 डिवाइड बाय 75 का परसेंटेज लगा लो तो आपका बनेगा 10,000, 6,666। तो ये आपका 100% पे आपका यूनिट निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए ये हो गई आपकी आज की क्लास खत्म। आधे घंटे बाद मिलते हैं हम टैक्स की क्लास में, ठीक है। सभी को बाय और नमस्कार। हम मिलते 8:30 बजे अपनी कॉस्ट टैक्स की क्लास में, ठीक है। आ जाना सब। अच्छा आज टैक्स में क्या होगा, आज टैक्स क्लास में जो बेसिक कॉन्सेप्ट बच गए आपके, रेट्स, स्पेशल रेट्स, मार्जिन रेट, जो भी बचा पोर्शन है आज वो खत्म करेंगे और कल आईसीआईसीआई रेट का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आ जाना सभी लोग लाइव, ठीक है, रखते हैं।